اللہ کے پاس جواب کیا دیں گے؟ اس قوم کو برباد کوئی اور نہیں کر رہا ہے، اس قوم کو، مسلمانوں کو، ہمارے نسلوں کو برباد ہم خود کر رہے ہیں، ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ مٹن مارنے والا مسلمان، چکن مارنے والا چاند بادشاہ، پھل پلالی بیچنے والا، آم بیچنے والے امجد بھائی، جام بیچنے والے جانی بھائی، آج مسلمان کہاں؟ ایجوکیشن سینٹرز مسلمانوں کے کہاں ہیں؟ یونیورسٹیز مسلمان کیوں نہیں کھولتے؟ مسلمان سکولز کیوں نہیں کھولتے؟ مسلمان کالجز کیوں نہیں کھولتے؟ مسجد نبوی سے سائنٹسٹ تیار ہوتے تھے، مسجد نبوی سے ڈاکٹرز تیار ہوتے تھے، مسجد نبوی سے عالم بنتا تھا، مسجد نبوی سے مفتی بن کے نکلتا تھا، مسجد نبوی سے حافظ بن کے نکلتے تھے، مسجد نبوی سے بزنس مین نکلتے تھے، مسجد نبوی سے ایم ایل اے، ایم پی، منسٹرز، جتنے بھی کلیکٹرز، اس زمانے کے گورنرز مسجد نبوی سے طے ہو کے جاتے تھے۔ آج جو کیمرہ چل رہا نا بڑے بڑے، اس کا ایجاد کرنے والا، اس کو ریسرچ کرنے والا، اس کا وجود لانے والا، اس کے بارے میں بتانے والا ایک مسلمان تھا۔ یہ جو آج لوگ ہوا میں اڑ رہے نا، ہیلی کاپٹر میں، فلائٹ میں، اس کا راستہ بتانے والا بھی، اس کو پہچاننے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا، ایک حافظ قرآن تھا۔ سارے جہان سے اچھا ہندوستاں ہمارا، اس ترانے کو پڑھنے والا بھی، بنانے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ گاندھی جی کے جان کو بچانے والا بھی ایک مسلمان ہی تھا۔ مسلمانوں کے حالات دیکھو، پنچر دکان مسلمان کا، بریانی بادشاہ بھائی مسلمان، پنچر دکان مسلمان کا، مٹن مارنے والا مسلمان، چکن مارنے والا چاند بادشاہ، پھل پلالی بیچنے والا، آم بیچنے والے امجد بھائی، جام بیچنے والے جانی بھائی۔ آج مسلمان کہاں؟ ایجوکیشن سینٹرز مسلمانوں کے کہاں ہیں؟ رونے کی بات ہے، پیسہ شادیوں میں برباد کرنے کا حکم کون سے قرآن میں اللہ پاک حکم دیتے ہیں؟ تمہیں کون منع کرتا ہے؟ سادگی سے شادی کرنے کو روکتا کون ہے؟ آج شادیوں میں بہت درد کی ایک بات ہے، ایک مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے، میں سن رہا تھا، بہت بڑے مولانا صاحب ہے، کہ رات کے 2:30 بجے ان کو 6 مسڈ کال آئے تھے، 6 مسڈ کال۔ وہ پروگرام سے جا رہے تھے، پروگرام میں تھے، موبائل سائلنٹ میں تھا، کار میں بیٹھے تو دیکھا کہ 6 مسڈ کال آئے۔ انہوں نے سوچا کہ کوئی بندہ ضروری کام کے لیے ہی فون کیا ہوگا، 6 مرتبہ اگر کوئی فون کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کوئی ضروری کام ہوگا۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کال بیک کیا، السلام علیکم بیٹا، کون؟ رونے کی آواز آئی، السلام علیکم حضرت۔ بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو، پریشان کیوں؟ کہا کہ حضرت میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ بیٹا ہوا کیا ہے، روتے کیوں ہو؟ کہا کہ میری بہن کی بارات آئی تھی، لڑکے والے آئے تھے، 150 آدمی، میرے ابا کے پاس پیسے نہیں تھے تو میرے ابا میرے بہن کے شادی کے لیے ان کے دوستوں کے پاس، رشتہ داروں کے پاس قرض بھیک میں لیے، مانگ کر قرض کے طور پر لیے، 150 لوگوں کا کھانا بنوائے، 20 لوگوں کا کھانا کم پڑ گیا تھا۔ جب 20 لوگوں کا کھانا کم پڑ گیا آخر میں، تو لڑکے کا باپ کہنے لگا، ارے میں کس بھکاری کے گھر میں اپنے بیٹے کے لیے لڑکی کو تلاش کر لیا، کس بھکاری کے گھر میں دلہن کو لے کے آ رہا ہوں میرے بیٹے کے لیے، کس بھکاری کے گھر میں میرے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں میں۔ میرے باپ کے کان میں جب یہ آواز پڑی، میرے باپ پوری زندگی عزت کی زندگی گزارتے ہوئے زندگی گزارے، کبھی کسی کی بات کو، کسی سے باتوں کو انہوں نے نہیں سنا، کبھی کسی کے پاس پیسہ بھی نہیں لیتے تھے، قرض لے کر شادی کر رہے تھے۔ صدمہ، تکلیف برداشت نہیں ہوئی، میرے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، ابھی حضرت میں ہسپتال میں ہوں۔ مولانا نے کہا کہ بیٹا جس جگہ
लोग खाना खाए हैं, वहाँ के कचरे के टुट्टी में जाकर देखो कितने लोगों का खाना पड़ा होगा। किसी बच्चे को भेजो, एक बच्चे को, एक लड़के को, उसका दोस्त को फ़ोन करता है लड़का, कहता है कि मेरे भाई जाओ वहाँ देखो, मौलाना का हुक्म है कि कितने लोगों का खाना वहाँ गिरा होगा, पड़ा होगा कचरे में। वो लड़का गया, वो लड़का देख कर कहता है कि मौलाना साहब, कचरे के टुट्टी में 50 से ज़्यादा लोगों का खाना पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है। वेश लोग खाने को बचाकर कचरे के टुट्टी में डाल दिए। ये हकीकत है कि नहीं? अल्लाह के पास जवाब क्या देंगे? इस कौम को बर्बाद कोई और नहीं कर रहा है। इस कौम को, मुसलमानों को, हमारे नस्लों को बर्बाद हम खुद कर रहे हैं। हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। यूनिवर्सिटीज मुसलमान क्यों नहीं खोलते? मुसलमान स्कूल्स क्यों नहीं खोलते? मुसलमान कॉलेजेस क्यों नहीं खोलते? जाओ, कितने कितने बड़े बड़े देखो, यहां पे एकड़ों के जमीनें मुसलमानों के पास है, बड़े बड़े होटल मुसलमानों के, बड़े बड़े मदरसे मुसलमानों के। मैं दरखास्त करता हूं हमारे उलमा काबिरीन से, जिन मदारिस में बच्चे नहीं है उन मदारिस वालों से, जहां है हजारों के तलबा पढ़ रहे हैं। हैदराबाद में मदारिस देख लीजिए, तमिलनाडु में देख लीजिए, आंध्रा में कई मदारिस ऐसे जहां हजारों के, सौों के बच्चे हैं। 10-20 एकड़ जिसके पास है, 5 एकड़ जिसके पास है, 4-3 एकड़ जिसके पास है, 10 बच्चे 20 बच्चों को रखकर अल्लाह के सामने जवाब देना होगा। कौम के पैसों से, चंदों के पैसों से, अवाम के पैसों से तुम अपने प्रॉपर्टीज को मत बनाओ, अपने नामों पे जमीनों को ना बनाओ। इन जमीनों को, इन जायदादों को, इन मदारिस को, वक्फ के जमीनों को, और जो बड़े बड़े मस्जिदें हैं, बड़े बड़े मस्जिदें जहां स्कूल चल सकते हैं वहां स्कूल चलाओ, अल्लाह तुमसे राजी होगा। जो बड़े बड़े मदारिस 10, 15, 20 बच्चे, 30 बच्चे, 40 बच्चे यखरों में मदारिस है, उन लोगों से भी दरखास्त है कि वहां कॉलेज खोलो। आज कॉलेजों की जरूरत, स्कूल्स की जरूरत। इतने बड़े नेल्लूर शहर में कितने स्कूल है मुसलमानों के, इस्लामिक स्कूल? करनूल में कितने, कड़पा में कितने हैं, ओंगोल में कितने, मुसलमानों के बड़े बड़े सिटीज, अनंतपुर कितने हैं मुसलमानों के स्कूल्स? आज तुम कहते हो कि मुसलमानों के हिस्ट्री को सिलेबस में से निकाला जा रहा है, स्कूल्स में मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, स्कूल्स में मुसलमानों को शिर्क की दावत दी जा रही है, स्कूल्स और कॉलेजेस में मुसलमान बच्चों को हिजाब, बुर्खा पहनने से मना किया जा रहा है। तुम हिजाब में स्कूल जाना चाहते हो? तुमको कोई रोक रहा है हमारे स्कूल में हिजाब पहन के ना आओ, तुम स्कूल क्यों नहीं बनाते? तुम कॉलेजेस क्यों नहीं बनाते? तुम इस्लामिक यूनिवर्सिटीज बनाते क्यों नहीं हो? तुम्हारे स्कूल में कोई रोक सकता है? तुम इजाजत दो हिंदू भाइयों के बोट्टू लगा कर आओ, हिंदू बहनों को इजाजत दो कि हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए खुलिए। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी से साइंटिस्ट तैयार होते थे, मस्जिद नबवी से डॉक्टर्स तैयार होते थे, मस्जिद नबवी से आलिम बनता था, मस्जिद नबवी से मुफ्ती बन के निकलता था, मस्जिद नबवी से हाफिज बन के निकलते थे, मस्जिद नबवी से बिजनेसमैन निकलते थे, मस्जिद नबवी से एमएलएस, एमपीस, मिनिस्टर्स, मस्जिद नबवी से आज के जो छोटे छोटे ओहदेदार हैं, एमपीस, मिनिस्टर, और ये जो जितने भी कलेक्टर्स, उस जमाने के गवर्नर्स मस्जिद नबवी से तय होके जाते थे। मस्जिद नबवी से लीडर बनता था, मस्जिद नबवी से स्कॉलर बनता था, मस्जिद नबवी से डॉक्टर्स निकलते थे, मस्जिद नबवी से दुनिया को अमन का पैगाम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम दिया करते थे। मस्जिद नबवी में बैठकर दुनिया में इंसाफ के चर्चे आम किया करते थे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। जो मस्जिद है ये सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, ये मस्जिद इबादत की जगह भी है, मस्जिद
इंसाफ की बात करने की जगह भी है, मस्जिद अकायद बयान करने की जगह भी है। और अगर मस्जिदों में ज्यादा जगह है, इस्लामिक स्कूल्स खोलो, अपने बच्चों को वहां पढ़ाओ। मस्जिद इंसाफ के लिए प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में लोग मस्जिद में आया करते थे। किसी को कोई तकलीफ पहुंची, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के दरबार में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म से मदद मांगने के लिए मस्जिद में आया करते थे। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मस्जिद में आ गई, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए। हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए बिस्तर बिछाया, चादर बिछाया, वहां बैठ गई। साहबा किराम बात कर रहे थे, कौन है ये? कहा कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कान में आवाज पड़ी, कहा कि ये मेरी वो अम्मी है जिसने मुझे दूध पिलाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की इज्जत मस्जिद से सिखाया करते थे। नॉन मुस्लिम्स, मुशरिकीन, कुफार भी अगर जरूरत हो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मस्जिद में आ करते थे, उनसे मदद मांगा करते थे। किसी को भूख लगी मस्जिद में आ जा करते थे, हमें भूख लग गई है। नबी नहीं देखते थे कि मुसलमान है, काफिर है, मुश्रिक है, उसके भूख को मिटाने का प्लान पहले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे। किसी की बच्चे का रिश्ता नहीं हो रहा, मस्जिद में आते थे कि या रसूलुल्लाह हमें रिश्ता नहीं मिल रहा है। नबी ऐलान करते थे, इसके बच्चे को बच्ची कौन देगा? शादी हो गई बस। किसी के लड़के को लड़का नहीं मिल रहा, मस्जिद में आया, पैगाम भेज दिए, नबी ऐलान फरमा दिए, उसका काम हल हो गया। किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, मस्जिद से मसाइल हल होते थे। आज मस्जिदों में ताले लगना शुरू हो गए, क्योंकि सिस्टम ही हम लोगों ने बिगाड़ा ना। सिस्टम बिगाड़ने वाले हम ही लोग हैं। जो लोग ताले अगर खोल दें, कमजोरी हमारी है ना कि बीड़ी पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, गुटखे खाने वाला मस्जिद के बाथरूम में आकर गुटखे खाकर थूकता है, मस्जिद के बाथरूम में आकर सिगरेट पीकर वहीं सिगरेट डाल के चला जाता है। बीड़ी पीने वाला मस्जिद के बाथरूम में, अल्लाह के घर में बीड़ी पीने के लिए आता है। कमजोरी हमारी है। मेरे भाइयों, बदलो अपने जिंदगियों को। आज अपना पैसा बर्बाद ना करो फंक्शनों में। बड़े बड़े फंक्शन हॉलों से ज्यादा जरूरत है मुसलमानों स्कूल्स खोलो, बड़े बड़े होटल्स। यहां आए नेल्लूर में कोई सर्च करता है कि होटल किसका अच्छा है, मुसलमान का होटल मिल जाएगा, जरूर तो मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। मटन लेना है तो मुसलमान की दुकान पे आ जाओ, चप्पल लेना है तो ठीक है, मुसलमानों के थोड़े बहुत दुकानें हैं। हाँ, लाजिम पंचर जलाना है तो मुसलमान का दुकान जरूर मिल जाएगा, चाय का दुकान मुसलमान का नजर आएगा। मेरे भाइयों, ये काम गलत नहीं है, हलाल है। हलाल कमाई को अल्लाह पसंद करता है, मगर अपने बच्चों की जिंदगी को अगर बदलना है तो हमारे कौम के बड़ों को, हम सबको ज़रूरत है, जिम्मेदारी है कि इस्लामिक स्कूल्स और कॉलेजेस खोलें। स्कूल और कॉलेजेस में हम कुरान की तालीम भी दुनिया के तालीम के साथ लोगों में आम करें। दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, अगर मैं बयान करना चाहूँ ये मौका नहीं है। कभी मौका मिले तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस्लाम में एजुकेशन, इम्पॉर्टेंट ऑफ एजुकेशन इन इस्लाम में इल्म की, एजुकेशन की अहमियत क्या है, क्या दर्जा है, इसके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊंगा। क्योंकि कुरान में सबसे पहले जो आयत उतरी, कौन सी आयत है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ अल्लाह के नाम से। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो वही उतरी वो इल्म के बारे में उतरी। यहाँ जितने लोग हैं, किसी के पास हैसियत है, एक स्कूल बनाने की कोशिश करो, नीयत करो कि स्कूल में 1 घंटा सिर्फ मैं इस्लाम, कुरान, हदीस की तालीम दूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह के नजर करम और अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ हो जाएगी। हमारी नीयत है, इरादा है, अल्लाह इंशाल्लाह उसको पूरा फरमाए। हमारे जो बच्चे, तकलीफ़ बहुत हुई कि हिजाब के मौके पे हमारे लड़कियां, हमारे बच्चे जो परेशानी का सामना किए थे, आप लोग देखे थे कि कितनी तकलीफ़ मुसलमानों को दी जा रही है। क्योंकि हमारे पास स्कूल्स और कॉलेज, मौका नहीं है ना। एजुकेशन छोड़ो,
या बुर्खा छोड़ के जाओ, मौका वैसा लाए। आप सोच रहे हैं कि भाई फिर वो कैसे होगा, कहाँ से होगा, किस वजह से होगा। वो कभी भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जायदाद उनके, प्रॉपर्टीज उनके, स्कूल्स उनके, एजुकेशन सेंटर्स उनके, तुम्हारे पास है क्या? तुम किराए के हो ना। मैं ज़ाती मकान मेरा है, जब चाहे मैं घर खाली करवा सकता हूं, वो मेरी मर्जी है। हम लोगों को अपना ज़ाती मकान बनाने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के एजुकेशन के ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है, अपने बच्चों के इल्म के ताल्लुक से सोचने की ज़रूरत है। यहाँ किसी के पास अगर हैसियत है, इस पे कदम उठाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह, मैं तो कहता हूँ कि बड़ा काम ज़रूरत नहीं भाई, यूनिवर्सिटी कॉलेज खोलो ना, को थोड़ी सी ज़मीन है, इस्लामिक स्कूल एक खोलो, अच्छा एजुकेशन सेंटर बनाओ, अच्छा एजुकेशन सेंटर जहाँ बच्चे आए, अल्लाह के कलाम भी सीखे 1 घंटा और दुनिया के इल्म भी हासिल करे, फायदा होगा। बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, बच्चे सुधरेंगे, बच्चों की जिंदगियां सही रहेंगी। हकीकत में जो बच्चा कुरान से जिसका दिल लग जाता, अल्लाह पाक उसके दिमाग को तेज फरमा देते। इस हिंदुस्तान का पहला एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? बोलो बच्चों, कौन है मां? एजुकेशन मिनिस्टर कौन है पहला हिंदुस्तान का, हमारे इंडिया का? बोलो कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? बोलो भाई। मौलाना अबुल कलाम आजाद। कौन है एजुकेशन मिनिस्टर? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1916 में होम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के? मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। इस वर्ल्ड में मेडिकल साइंस के ऊपर सबसे पहले किताब लिखने वाला भी एक मुसलमान था। आज जो कैमरा चल रहा ना बड़े बड़े, इसका इजाद करने वाला, इसको रिसर्च करने वाला, इसका वजूद लाने वाला, इसके बारे में बताने वाला एक मुसलमान था। वर्ल्ड में सबसे बड़ी सर्जन भी एक मुसलमान थी। ये जो आज लोग हवा में उड़ रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर में, फ्लाइट में, इसका रास्ता बताने वाला भी, इसको पहचानने वाला भी एक मुसलमान ही था, एक हाफिज कुरान था। मेडिकल साइंस के ऊपर जिसके किताबें 700 बरस तक यूरोप में पढ़ाई गई, वो एक हाफिज कुरान इब्ने सीना था, एक मुसलमान था। पौने दुनिया पे हुकूमत करने वाला, जिसके कपड़े पे 18 पैबंद लगे हुए थे, इस दुनिया को अमन का पैगाम देने वाला एक मुसलमान हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु थे। ये सब मुसलमान। इस हिंदुस्तान के आजादी के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाला एक मुसलमान था। आज इंडिया के जो फ्लैग है, इंडियन फ्लैग, उस फ्लैग का मॉडल बनाने वाला भी एक मुसलमान ही था। सारे जहान से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इस तराने को पढ़ने वाला भी, बनाने वाला भी एक मुसलमान ही था। गांधी जी को बाहर कंट्री से, अफ्रीका से इंडिया को दावत देने वाला, चंदा कर लोगों के पास गांधी जी को मुसलमानों से मिलकर फ्रीडम फाइटिंग में उनको शामिल कर उनको लाने वाला भी एक मुसलमान था। गांधी जी के जान को बचाने वाला भी एक मुसलमान ही था। आपको क्या क्या बताऊं मैं? मुसलमानों की हिस्ट्री इंशाल्लाह जब मौका मिले आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा। आज ज़रूरत है हम सबको कि हर मैदान में हमारे बच्चे आगे बढ़े। अल्लाह हम सबको मुसलमानों की जो परेशानियां हैं, इन परेशानियों को दूर अता फरमाए।